Different kinds of ministries in the church. And one ministry all of us can do is the prayer ministry. और कलीसिया में बहुत सारी अलग-अलग सेवकाइयाँ हैं, पर एक सेवकाई ये जो हम सब कर सकते हैं, वो है प्रार्थना की सेवकाई। And we 2 weeks back we spoke about some of the general principles of effective prayer. और हमने उसके सिद्धांत हैं प्रार्थना के, कि एक प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर हमने थोड़ा मनन किया था। The time of prayer, duration of prayer, the posture of prayer, general things concerning prayer, which is all there in the Bible. और प्रार्थना के साथ संदर्भित बातें जो बाइबल में बताई गई हैं कि कैसे किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, किस समय प्रार्थना करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए, ये सारी बातें जो हमने इस पे मनन किया था। Look at the life of the Lord Jesus Christ, his life of prayer. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को देखते हैं, how when he was physically alone, he spent whole nights in prayer. जैसे जब प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, तो पूरी रात प्रार्थना में निकालते थे। When 2 or 3 people were there in the Garden of Gethsemane, maybe 1 hour in prayer. और जब 2-3 लोग जैसे गत्समनी की बगीचे में जब प्रार्थना करते थे, तो 1 या 2 घंटे प्रार्थना करते थे। A lot of people were there, very short prayers. पर जब बहुत बड़ी भीड़ होती थी, तो बहुत छोटी प्रार्थना करते थे। Whereas Christian prayers are opposite. पर जो मसीह लोगों की प्रार्थना वो इसके बिल्कुल विपरीत होती हैं। A lot of people are there, we pray long. अगर ज्यादा लोग हैं, तो हम और लंबी प्रार्थना करते हैं। Less people, less time. थोड़े लोग हैं, थोड़े समय प्रार्थना करते हैं। No people, no time. अगर लोग नहीं है, तो प्रार्थना ही नहीं करते। And not only that, we also spoke about the posture of prayer. Sometimes we think only we should kneel down and pray, only this prayer. No, we can kneel down, we can sit, we can stand, we can lie prostrate. All of them are scripture. We looked at scripture verses for that. और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से प्रार्थना करें, घुटनों पे आके करें, खड़े होके करें, लेट के करें, मुंह के बल गिर के प्रार्थना करें, इस सब बातों पे हमने मनन किया था। We also spoke about how the Lord Jesus Christ's ministry itself came from his fellowship with the Father in heaven. और हमने ये भी देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, वो इसी बात पे आधारित थी, कैसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते थे। Whatever he did was what he saw the Father doing, according to John 5:19. और यूहन्ना 5:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वही करते थे जो अपने पिता को करते हुए देखते थे। And also whatever he spoke came from the Father. He didn't spoke nothing on his own. और जो बोलते थे वो भी पिता की ओर से बोलते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे। John 7:16 he says whatever I say, whatever I speak came from the Father. और यूहन्ना 7:16 में भी प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि जो कुछ मैं बोलता हूँ वो पिता की ओर से आता है। And that came from his fellowship with the Father. और ये पिता के साथ जो संगति करते थे प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा से करते थे। Today we're going to look at the hindrances that come in the way of prayer and how to remove the hindrances. आज हम देखेंगे वो बाधाओं को जो प्रार्थना के बीच में आती हैं और कैसे हम उन बाधाओं को हटा सकते हैं। We're going to go very slowly because I have a lot of things to share. I'll maybe go on till next week also. But it's very, very important that we understand how our prayers can be very effective when we pray biblically. और हम इसको आराम से देखेंगे, सारे विषयों को देखेंगे और हमें देखना कैसे हमारी प्रार्थना बाइबल के अनुसार बड़े प्रभावशाली हो। We are going to look at the biblical principles by which you can have confidence that prayers are heard. हम बाइबल के उन सिद्धांतों को देखेंगे जिसके द्वारा से हमें ये हियाव हो जाता है कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। When Christians pray, so often they're not confident that the prayer is heard. They say, you also pray, you also pray, you also pray. Why? Because you're not sure your prayer is heard. और बहुत से मसीह लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना करने के बाद दूसरे लोग भाई बहनों से बोलते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनको ये हियाव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। We're going to talk about removing hindrances that come in the way of prayer. First, have confidence that is heard, and thereafter we keep thanking God for hearing a prayer. तो हम बस उन बातों को देखेंगे कि जिसके द्वारा से हमें हियाव हो जाता है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उस प्रार्थना को सुन लेने के लिए। God in his infinite mercy must still answer our prayers even though we have some hindrances because of his grace and his love for us. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, और कुछ प्रार्थना को उत्तर नहीं देंगे क्योंकि हो सकता है कुछ बाधाएं हैं, कुछ बातें हैं जिसके वजह से वो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे। But sometimes he must still answer our prayers even though we are not right with him because of his love and grace. और पर उसके प्रेम और दया के कारण से कई बार हमारी प्रार्थना जो हम सही भी ना हो, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे देते हैं। When we remove the hindrances, we will have confidence that he's heard my prayer and in time he will answer my prayer in his way.
और जब हम इन बातों को समझ लेंगे कि तो हमें याद हो जाएगा कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु ने और अपने समय में उसका उत्तर भी देंगे। We'll go one by one, the various hindrances that come in the way of prayer. When we remove the hindrances, we'll have confidence that our prayer is heard. Lord has heard my prayer. हम एक-एक करके उन बाधाओं को देखेंगे और जब हम उन बाधाओं को हटा देंगे तो हमें याद हो जाएगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। Jesus knew fully well whatever he prayed, the Father heard. प्रभु यीशु मसीह को पूरा भी पता था कि जो कुछ वो प्रार्थना करते हैं उसे पिता ने सुन लिया है। When he was at the tomb of Lazarus and the people had come there to mourn with Mary and Martha, जब प्रभु यीशु मसीह लाजरस की कब्र पे थे और लोग मार्था और मरियम के साथ वहां पे उनके साथ शोक मनाने के लिए आए थे, he spoke two sentences to God the Father. उसने पिता परमेश्वर से दो बातें, दो शब्द, दो वाक्य बोले बस। John 11:41-42. यूहन्ना 11:41 और 42 भी आए। I thank you, Father, you heard me. I knew you always hear me. But I say this for the benefit of those standing here, they may believe you sent me. हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, क्योंकि जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। He knew Father heard his prayer. He knew always Father heard his prayer. But he said that for the sake of the people, for them to know he was sent by the Father in heaven. तो यीशु मसीह बोलते हैं कि उसे पता है कि परमेश्वर हरदम उसकी सुनते हैं, पर वो इस सिर्फ भीड़ को सुनाने के लिए, कि वो आश्वस्त करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। We need to come to a point in our Christian life when we pray, we realize that he always hears the prayers and I thank you, you heard me. That kind of faith we should have. और हम जो मसीह लोग हैं, हमें भी ऐसा बोलना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए इस बात का। I want to tell him, Lord, you always hear me. That we should have the confidence to say that. और हमें ये भी याद होना चाहिए कि प्रभु तू मेरी हरदम हर समय सुनता है। Actually, he always hears us. His answer may be different from what we ask. He'll answer in his way and in his time. और परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना वास्तव में हर समय ही सुनते हैं, पर हमारा प्रार्थना बहुत अपने समय में अपने तरीके से देते हैं। So, what are the hindrances? तो बाधाएं क्या क्या है? Number one is cherishing sin. पहला है कि पाप को हम बड़ा आनंद से उसमें आनंद लेते हैं। No, not really anand. It is like, desiring to continue in sin. Cherishing means not completely breaking away from sin, but having a desire, even if I do something wrong, God will still forgive me. और उसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें आनंद लेते हैं, हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम चाहते हैं प्रभु माफ करेगा, प्रभु जानता है इस बात को। And this is found in the book of Psalms, chapter 66, verse 18. भजन 66 उसकी 18वीं आयत में हम इसको देखते हैं If I cherish sin in my heart, God will not have listened. कि यदि मैंने अनर्थ बात सोचता, तो मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। If I regard iniquity in my heart, God will not listen. और पर अगर मेरे मन में अगर मैं अनुचित बात सोचता, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता। Now it's like this. All of us sin now and then. Not always we sin. Now and then we sin. But what is the attitude towards sin? Do we cherish it? We say, okay, if I do it again, what is that? Everybody sins. There's nothing wrong. I'm a weak person. That attitude is very important. We should not cherish sin at all. तो हमें जो हम जब पाप करते हैं, तो क्या हम ये कहते हैं कि अरे सभी तो करते हैं, इसमें परमेश्वर मेरी कमजोरी को जानता है, और उस पाप को हमें अपने मन में बनाए नहीं रखते रहना चाहिए। We must have this passion to turn away from sin. हमारे अंदर ये लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं इस पाप से मुड़ जाऊं। Cherishing sin means having a latent desire in your heart that I might even continue. I might even do one more time or do a few more times. और इस बात का मतलब ये है कि मैं उस पाप में मैं बना रहता हूं, और मेरे मन में ये इच्छा होती है कि मैं एक दो बार और इस पाप को दोहराऊंगा। Just because we have the sinful nature, it does not mean that we should continue to sin. और ये नहीं कि अगर हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप लगातार करते रहें। A simple question Paul put to the church in Rome, 6:15 of Romans 6:15. That's because grace increase, can I continue in sin? By no means. और इसलिए पौलुस जो है रोमियो को बोलता है 6 अध्याय उसकी 15वीं आयत में कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, तो क्या मैं पाप करता रहूं? Now, the Apostle Paul is an example for us about how he had a passion to turn away from sin. और हम देखते हैं पौल के अंदर कैसा एक जज्बा था, एक लगन थी कि मैं पाप से किस तरह से मुड़ जाऊं।
7th chapter of Romans, the last few verses, he talks about the struggle he had. What I want to do, I'm not able to do. What I don't want to do, I'm doing. और पौलुस के 7वें अध्याय में, रोमियो के 7वें अध्याय की आखिरी कुछ आयतों हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता है। In Romans 7:22, he says, "In my inner man, I delight in God's law." और वो 22वें आयत में 7वें अध्याय की कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत प्रसन्न रहता हूँ। Verse 25, he says, "In my mind, I'm a slave to God's law." और 25वें आयत में कहता है, निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। His problem was with the body. और उसकी जो समस्या थी वो उसके शरीर के साथ थी। Verse 24, he says, "What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death?" और 24वें आयत में कहता है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। So he had this passion to turn away from sin and not to grieve God by sinning. और उसके अंदर ये लगन थी कि मैं ये पाप में और बना रहा हूं जिससे कि परमेश्वर को मैं शोकित करूं। Ultimately, he found victory in Christ. और अंत में उसको प्रभु यीशु मसीह में विजय भी मिली। So all of us should have this passion and impatience to come out of sin. और हमारे अंदर ये लगन और हमारे अंदर ये अधीरता होनी चाहिए कि हम पाप से किस तरह से निकल जाएं। When it comes to other people's sin, we should be patient. जब दूसरे लोगों के पाप की बात आती है तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। When it comes to our own sin, we must be impatient. और जब हमारे अपने पाप की बात आती है तो हमारे अंदर बिल्कुल धैर्य नहीं होना चाहिए। We may have a strict standard for ourselves and a compassionate standard for other people. हमारे लिए अपने लिए तो बड़ा बिल्कुल सख्त होना चाहिए, पर दूसरों की जब बात आती है तो हमारे अंदर उनके लिए नम्रता होनी चाहिए। Most Christians are opposite. They are very compassionate towards themselves, but very strict with others. और मसीह लोग बिल्कुल विपरीत होते हैं, अपने लिए तो बड़े दयालु होते हैं, धैर्य रखते हैं, और दूसरों के लिए बिल्कुल उनके लिए धैर्य नहीं होता। It's very important to forgive yourself, but you must turn from sin and then forgive yourself. और ये बहुत जरूरी है कि अपने पापों से मुड़ना, पर पहले हमें उस पाप से माफी मांग लेनी है और फिर पाप से मुड़ना है। We can't forget ourselves. If we can't forgive ourselves, we cannot forgive others. अगर हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते तो हम अपने को भी माफ नहीं कर पाएंगे। The other way around. If we don't forgive ourselves, we can't forgive others. हाँ, जब अपने को हम माफ नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी माफ नहीं कर पाएंगे। We forgive ourselves because God has forgiven us. और हम अपने आप को इसलिए माफ करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमें माफ कर दिया है। The first hindrance in our prayers is our cherishing sin. तो हमारी पहली बाधा जो हमारी प्रार्थना में आती है कि हम पाप में बने रहना चाहते हैं, उसमें उससे हम प्रेम करते हैं। For example, early morning when you get up or whenever you pray, begin the day, it's always good to, in the very early part of your prayer life, the very beginning itself, say, "Father, I come to you in the name of Jesus." Ask Holy Spirit to help you to pray. और इस सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि हम प्रार्थना में सुबह जब आते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु में आप पवित्र आत्मा जी के लिए धन्यवाद और मेरी सहायता करें, मुझे सिखाएं कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। Then you ask the Holy Spirit to counsel you and to convict you of any particular sin in your heart, which you don't even know. And when you put away that, then they can go on with the fellowship with God. और पवित्र आत्मा जी से बोलें कि प्रभु मैं उस पाप को दिखा जो मेरे जीवन में है, और जब वो पाप दिखाते हैं मुझसे माफी मांग लें, उससे दूर हो जाएं, तब हमारे अंदर हियाव आता है कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। In God's presence, our secret sins also are exposed. परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे छुपे हुए पाप भी जो है वो सब प्रकट हो जाते हैं। In Psalm 90 verse 8, Moses writes, भजन 90 उसकी 8वें आयत में मूसा ऐसा लिखते हैं, "You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence." तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। Even David prayed in the Psalm 139 verses 23 and 24. और भजन 139 उसकी 34 और 35वीं आयत में 33 और 34वीं आयत में दाऊद भी ऐसा लिखते हैं, "Search me, O Lord, and know my heart. Test me and answer thoughts." 23 और 24वीं आयत में, माफ कीजिएगा, हे परमेश्वर मुझे जांच के जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। See if any offensive way in me, lead me in the way everlasting. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। These people never trusted in their own intellect or their own wisdom to understand their own sin. और ये दोनों जो है, इन्होंने अपनी बुद्धि अपनी समझ का भरोसा नहीं करा कि उनके पापों को वो देखें, अपने आप जांचें। In Psalm 36 verse 2, the psalmist talks about certain people who flatter themselves too much to detect or hate their sin.
और भजन 36 में हम देखते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में है कि वो जो है अपने चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने पाप को बनाए रखने देना चाहते हैं। They flatter themselves too much to detect or hate the sin. Before you hate sin, detect the sin. If you don't detect it, how can you hate it? वो अपने आप को इतना उन्होंने मोटा ताजा कर लिया है, अपने आप को ऐसा कर लिया है कि वो पाप को ढूंढ ही नहीं पाते। जब पाप को ढूंढेंगे नहीं तो उसको छोड़ेंगे कैसे? Proverbs 8:13 says, to fear God is to hate evil. और नीति वचन 8:13 में लिखा है कि परमेश्वर का यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। Whenever you go to God in prayer, in one-to-one fellowship with God, the very beginning of the prayer time, ask Him to show you and ensure that there's nothing in your heart that makes you want to continue to cherish sin. और जब सुबह प्रार्थना के लिए आप आते हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर को प्रभु मेरे हृदय को जांच के देख ले, मेरे अंदर कोई ऐसी बात है उसको निकाल, मैं बने रहना, उसमें आनंद लेना नहीं चाहता। Ask Him to change you. और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बदल दे। The Lord makes us holy. परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं। 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, if we confess our sins, यदि हम अपने पाप को मान लें, He is faithful and just. तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है। He will forgive us and purify us from all unrighteousness. वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। We tell God, Lord, I confess this sin. I really want to come out of it. Lord, help me come out of it. That is enough for God. And He will give us the resources to come out of it. परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं इस पाप से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं इसको पसंद नहीं करता, और परमेश्वर आपको सारे साधन उपलब्ध कराएंगे कि आप उस पाप से निकल जाएं। The second hindrance is lack of faith. और दूसरी बाधा है विश्वास की कमी होना। Whatever you ask, you ask in faith. जो भी हम मांगे वो विश्वास से मांगे। In Matthew 21:22, Jesus says, मत्ती 23 और उसकी 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह, 21st chapter was 22nd verse. 21वें अध्याय उसकी 22वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, If you believe, you receive whatever you ask for in prayer. जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। So when we pray, we should have the confidence that you're putting your trust in the Lord who wants the best for you, and He's listening to you. You must have faith that He's listening to your prayer. तो जब हम प्रार्थना करें विश्वास से मांगना चाहिए, ये इस विश्वास से कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो मुझे देंगे वो मेरे लिए सबसे बेहतर चीज होगी, वही हमें देंगे। And in fact, faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. और विश्वास तो अनदेखी चीजों का पर आशा रखी हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। And must believe that the Lord wants to give us the best. He loves to do good to us. और हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारे को सबसे अच्छा हमारे लिए करना चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे बेहतर है वही हमें देना चाहते हैं। The book of Jeremiah, 32nd chapter, 38 to 41, from that we understand how God loves to do good to us. He'll never stop doing good to us. और यिर्मयाह 32 उसकी 38 आयत से 41 आयत तक देखते हैं कि हम देखते हैं परमेश्वर जो है हमारे लिए सदा भला करना चाहते हैं और करते रहना चाहते हैं। That's a prophecy about New Testament believers. और ये नए नियम के विश्वासियों के लिए एक भविष्यवाणी है। And God says about the New Testament believers, और परमेश्वर जो है नए नियम के विश्वासियों के लिए बोलते हैं, they will be my people, I will be their God. कि वे मेरे लोग होंगे और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। I'll give them singleness of heart and action. They will always fear me for their own good, for good of children after them. और उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय माने, जिससे कि उसका और उनके बाद उसके वंश का भी भला हो। I will make an everlasting covenant with them. मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा। I'll never stop being good to them. I will inspire them to fear me, that they'll never turn away from me. और मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपने भय में उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि कभी उससे अलग ना होना चाहे। I will rejoice in doing them good. मैं उनका भला करने में आनंदित होऊंगा। भला करने में आनंद होगा. That means I will be happy, joyful to do good to them. What a wonderful God we serve. तो कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं कि हम भला करने में वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। He finds pleasure in doing good to us. हमारा भला करने में उसको बड़ा आनंद मिलता है। He will never stop doing good to us. वो हमारा भला करना कभी भी नहीं रोकेंगे उस काम को। He inspires us to fear Him. वो हमारे को उत्साहित करते हैं, हमारे प्रोत्साहन देते हैं कि हम उसका भय माने। Have you ever heard of fear coming from inspiration? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भय जो है वो प्रोत्साहन से आ जाए? This fear is not an unhealthy fear.
It's a reverent fear. ये जो भय है, ये कोई अस्वस्थ वाला या बेकार का भय नहीं है, ये बड़े आदर से, परमेश्वर के आदर से उसका भय मानना आता है। When we fear God, we will hate evil. जब हम उसका परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हम बुराई से बैर रखेंगे। And we'll believe this God loves to give us what is best for us. So when He asks, we'll have faith to ask because He wants to do what is best. और जब मांगेंगे तो हमें विश्वास होगा कि परमेश्वर मेरी सुनेगा, कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सबसे भला जो होगा वो मेरे लिए करेंगे। We ask Him for what is good for us or what we think is good for us. He gives us what is best for us. हम तो अपने भले के लिए सोचते हैं, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये हम मांगते हैं, पर परमेश्वर हमारे को वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। Now, faith is a gift of God. और विश्वास जो परमेश्वर की ओर से दान है। Hebrews 12:2 says, He is the author and perfecter of our faith. इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारे हम विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। No, Jesus is the author and perfecter of our faith. Jesus. विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। Romans 12:3 says, 12 chapter verse 3, we all have a measure of faith which God has given us. और रोमियो 12:3 में लिखा है, हम सब में विश्वास का एक अंश है, और वो अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है। तुम 12:3 ब्रदर। One part, last part goes like this. We all have measure of faith which God has given us. It talks about measure of faith. हाँ, परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है विश्वास, वैसे ही सिद्धता के साथ हम उसको समझे, सद्बुद्धि के साथ उसको समझे। So He has given us, he says He has given us faith as a gift. और परमेश्वर ने ये हमारे परिमाण के अनुसार हमें ये विश्वास बांटा है। That's why when the Lord told the apostles to forgive 7 times a day, they say increase our faith. और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, प्रेरितों से कहा कि अपने दुश्मनों को, अपने वैरियों विरोधियों को माफ करो 7 से 70 गुना, तो वो कहते हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। So when we pray, we should ask God, Lord, give me faith to pray and to believe that you heard my prayer. It's a faith. It's a matter of faith. जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु से बोलूं, प्रभु मेरे को विश्वास दे कि आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया है, और आप मुझे विश्वास दें, इस बात को, मेरे विश्वास को बढ़ाएं कि मैं आपको, कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। Give me faith to believe that what I'm praying, I'm going to receive because you want to give it to me. आप मुझे विश्वास दें कि जो मैंने प्रार्थना करी है वो आपने सुन लिया है, और मुझे ये भी विश्वास हो कि आपने उसका उत्तर मुझे आप देंगे। The second hindrance is lack of faith. तो दूसरा जो बाधा है वो है विश्वास की कमी। First is cherishing sin, second is lack of faith. पहला है प्रेम को में आनंदित बने, उसमें बने रहना, उसमें आनंद करना। दूसरा है विश्वास की कमी होना। Third is bitterness that hinders answers to prayers. और तीसरा है कड़वाहट, ये भी हमारी प्रार्थनाओं में एक बाधा का काम करती है। In Mark 11:24-25, Jesus says, मरकुस 11 उसकी 24 और 25 आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, whatever you ask for in prayer, believe receive it will be yours. कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। Whenever you stand praying, remember you hold anything against anyone, forgive him, that heavenly Father will forgive you. और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी और की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। At the very beginning of our prayer time, we should ask God to show any area of bitterness, unforgiveness in our hearts. If there's unforgiveness, we cannot have fellowship with the God of love. तो हमने प्रार्थना करें, सबसे पहले परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे अंदर कोई ऐसी बात हो तो उसको आप दिखाइए, ताकि मैं उस क्षमा करके उसको, उस कड़वाहट को दूर करके आपके सामने शुद्ध मन से आ सकूं। Another caution that we have to take note is bitterness hinders grace. और ये बात भी हमें समझ लेनी है कि कड़वाहट जो है, इससे परमेश्वर के अनुग्रह में भी बाधा आ जाती है। Because God is a gracious God, He answers our prayers, He loves us. But then we hinder that grace by developing bitterness. हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो प्रेम अनुग्रह दिखाना चाहता है, पर अगर हमारे अंदर कड़वाहट होती है तो इस अनुग्रह में भी बाधा आ जाती है। Hebrews chapter 12 verse 15 we read, इब्रानियों 12 उसकी अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, writer gives a caution to the recipients of this book. और लेखक जो है इस पत्री को पढ़ने वालों को एक चेतावनी देते हैं। See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे।
So we take sometimes bitterness as for granted. Oh, he's done so much harm to me. How can I forgive? How can I forget? But then you don't realize we cannot have fellowship with a God of love with bitterness. हम कहते हैं कि अरे इस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं इसको कैसे माफ कर सकता हूँ? पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब तक हम माफ नहीं करेंगे, कड़वी जड़ हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक परमेश्वर हमारे को अपना अनुग्रह नहीं देंगे। In fact, that will affect our faith. बल्कि उससे हमारा विश्वास को भी प्रभाव पड़ेगा। We know in our conscience we're not having forgiveness, we are having bitterness against the person, and a disturbed conscience affects faith actually. और अगर हम किसी को माफ नहीं करते और हमारा विवेक अगर वो शुद्ध नहीं है, तो उससे हमारे विश्वास को भी प्रभाव पड़ता है। For example, in 1 Timothy chapter 1, 18, 19, Paul wrote Timothy. और जैसे पौलुस पहला तिमोथी पहला अध्याय 18-19 में वो पौलुस को तिमोथी को लिखते हुए बोलते हैं, Timothy, I give the instruction, keep the prophecies made about you. हे पुत्र तिमोथी, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, And by following them may fight the good fight, holding on to faith and a good conscience. मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। Keeping faith and a good conscience. Some reject this and shipwreck their faith. और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। So Vishwas and Ashuddha Vivek, right? That is a guilty conscience, affects your faith. We shipwreck your faith. और अगर हमारा विवेक जो है अशुद्ध है, वो अच्छा विवेक नहीं है, तो हमारा विश्वास रूपी जहाज भी डूब सकता है। So it's very important to know that even bitterness in the heart gives a guilty conscience. You know you should not be doing that. God has forgiven you, you must forgive others. But we still have unforgiveness. It affects our conscience, it affects the faith, and therefore affects prayer. तो अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है कि उसको जो हमारे विरोध में है उसको माफ कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो वो कड़वाहट से हमारा विवेक अशुद्ध हो जाता है, और विवेक अशुद्ध होने से हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है, और जब विश्वास डगमगाता है तो हमारी प्रार्थना भी अशुद्ध हो जाती, नहीं सुनी जाती। That's why in the book of Ephesians chapter 4, इसलिए इफिसियों उसके 4थे अध्याय में हम पढ़ते हैं, 31-32 we read, 31 और 32वें आयत में हम पढ़ते हैं, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत सब तुम से दूर की जाएं। Be kind and compassionate one another, just as in Christ God forgave you. और एक दूसरे पर कृपाल और कृपा करुणा में हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह से में तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Forgiving each other just as Christ forgave you. जैसे मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। And again in Colossians 3:13 we read, Paul writes, और हम कुलुसियों 3:13 में भी हम पढ़ते हैं, bear with each other and forgive whatever grievance you have against one another. Forgive as the Lord forgave. और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। Put away all unforgiveness and remove the memory of those wrongs against us also, so that we can have a wonderful fellowship with God, have confidence our prayers are heard. और हमें उन अपराधों को क्षमा करना है, उसकी याद को भी भुला देना है, ताकि हम जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें तो हमारी संगति बड़ी आनंद में संगति हो। The fourth hindrance is not praying according to the will of God. और चौथी बाधा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करने। In 1 John chapter 5, 14-15 we read, और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 14-15 में हम पढ़ते हैं, this is a confidence we have in approaching God. If we ask anything according to His will, He hears us. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। And we know He hears us, we know we receive what we asked of Him. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। And therefore, when we pray, we should pray according to the will of God, the wish of God. इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। And God loves to reveal His will to us. और परमेश्वर अपनी इच्छा हम पे प्रकट करना उसमें उस बड़े आनंदित होते हैं। God's will doesn't automatically take place in the world. We have to find out His will and do it. परमेश्वर की इच्छा संसार में अपने आप नहीं हो जाती, हमें उसकी इच्छा को ढूंढना होता है और फिर उसके अनुसार चलना होता है। Many people think that since God is omnipotent, He is omniscient and omnipresent,
whatever happened in the world is the will of God. बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर शक्तिमान है, सब ज्ञानी है, सब जगह उपस्थित है, तो इसका मतलब पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। But that's not true. और ये सच्चाई नहीं है। Yes, he's an omnipotent God. इसमें कोई शक नहीं कि हमारा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है, He does not force his will on anybody. और परमेश्वर अपनी इच्छा किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपते। The word will most often in the New Testament is a word in Greek called telma. और जो इच्छा है वो शब्द जो है तेल्मा, यूनानी भाषा का तेल्मा शब्द से बना है। It's used 64 times in the New Testament, the word telma. और नए नियम में 64 बार ये तेल्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। There are other words also for will, like bolema, which means purpose, gnome, which means God's way of judgment, and then one more word called telesis, which means God's inclination. These are all other words very rarely used. और भी शब्द हैं जो भाई ने बताए, जो पर ये शब्द जो हैं ये बहुत कम प्रयोग में हुए आए हैं। Whereas this is 64 times maximum. पर ये जो शब्द है तेल्मा, ये 64 बार सबसे ज्यादा बार आया है। And that word actually means God's wish or God's desire. और इस शब्द का मतलब है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की क्या लालसा है। And when you know that God is a holy God, we also know a holy God cannot desire or wish that we disobey him. और हम जब परमेश्वर को जानते हैं, उसकी हम ये भी जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्रता है, तो हम उसकी इच्छा को कभी उसके विरोध नहीं जाना चाहेंगे। What I mean is his wish cannot be that we disobey him. और हम उसकी इच्छा कभी भी ये नहीं हो सकती कि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। Or we disobey him sometimes. और हम उसकी आज्ञा कई बार अनाज्ञाकारिता कर देते हैं। When we happen to disobey him, we cannot say it happened, so it must be God's will. You can't say that. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हो गया है, इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा ही होगी। If it's not God's will, it won't happen. No, it does happen. Sin happens in the world. Sin is not the will of God. और तो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है, संसार में पाप होते हैं, पाप तो परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है कि संसार में पाप हो। That's why the Bible says in Ephesians 5:17, इसलिए बाइबल इफिसियों 5:17 में कहती है, don't be foolish, but understand what the Lord's will is. कहता इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। That's why the Lord's Prayer also we say, let your will be done on earth as in heaven. और इसलिए प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। At one time, his will was not taking place even in heaven because Satan rebelled against God in heaven. और एक बार तो स्वर्ग में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई, जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। He is banished from heaven. He is thrown down to earth. और उसको स्वर्ग में से निकाल के उसको पृथ्वी पर फेंक दिया गया। Now heaven, God's will is taking place. पर अब स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। It's not happening in this world. इस संसार में तो नहीं हो रही। In this prayer, we pray, Lord, let your will be done on earth as is in heaven. हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती हो, पृथ्वी पर भी हो। In the same way, we should find out the will of God and pray according to the will of God. तो इसी तरह से हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए और प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार ही करनी चाहिए। And very often I share about how to find out God's will. So many parameters to find out God's will. और परमेश्वर की इच्छा जानने का क्या तरीका है, कैसे कैसे जानना जा सकता है, वो भाई ने हमें पहले एक संदेश में दे रखा है, बताया हुआ है। And there are 9 ways of discerning God's will, but it's a way of life. It is a lifestyle of fellowship with God by which you can know His will. 9 उसके बिंदु हैं, पर ये जीवन का जीने का तरीका है, उसको जिएंगे वैसे उस तरीके से तो अपने जीवन को तो परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। Many times we pray and we don't get the way we want the answer because they're not praying according to God's will, His will. हम बहुत जो है प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं पाते। उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। Then I come to the next point, और अगला जो पॉइंट आता है, which I will elaborate in the next session, next week. और जिसको अगले हफ्ते भाई और विस्तार से उस पर मनन करेंगे। In the point now, but I'll elaborate next week. Next week I'm going to speak 3 or 4 more points. और हम इसको थोड़ा सा देखेंगे अभी, पर इसको विस्तार में अगली बार देखेंगे और 4 पॉइंट और अगले हफ्ते देखेंगे। And after all those points you go through, we'll have confidence of our prayers being heard. How nice it is to know God has heard my prayer. तो जब ये सारे बातों को हम देख लेते हैं तो हमें हिया हो जाता है और कितना खुशी की बात है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। And the 5th point which I want to share, वो जो 5वां पॉइंट भाई बताना चाहते हैं, is praying according to the word of God.
और प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन के अनुसार। In John 15:7, Jesus says, और यूहन्ना 15 उसकी 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish will be done for you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। So whenever we pray, we should pray according to the word of God. The word of God reveals the will of God also. तो हम जब भी प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है परमेश्वर की इच्छा को हमें बताता है। For example, when Daniel was praying when he was in exile in Babylon, तो जैसे उदाहरण के लिए दानियल जो बंधुआई में जब प्रार्थना कर रहा था, 9th chapter of Daniel is a prayer for the Israelites to go back to Jerusalem. और जो 9वां अध्याय है दानियल का, उसमें दानियल की प्रार्थना है परमेश्वर से कि वो इजरायली लोग वापस यरूशलेम को वापस लौट सकें। Earlier, Jeremiah had prophesied that when they are exiled, they'll be there for 70 years. After 70 years, God will bring them back. क्योंकि यिर्मयाह ने पहले भविष्यवाणी की थी कि बंधुआई में जाएंगे, 70 साल बंधुआई में रहेंगे, 70 साल की बंधुआई के बाद वापस यरूशलेम को लौट के आएंगे। The 9th chapter of Daniel is the prayer of Daniel for them to go back, and he's praying according to the word came to prophet Jeremiah. Lord, time for us to go back, so take us back. और यिर्मयाह जो है दानियल जो है इस 9वें अध्याय में जो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। प्रभु आपने बोला था 70 साल के बाद हम वापस आएंगे, वो समय आ गया है, अब हमें वापस जाने के लिए हमारी मदद करें। According to the prophecy of Jeremiah, 70 years exile, Lord, now take us back. 70 years finishing, take us back. प्रभु यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी आपके वचन के अनुसार, उसमें लिखा कि 70 साल के बाद हम वापस लौटेंगे। अब 70 साल पूरे हो गए, प्रभु हमें वापस लेके जाइए। So when we pray, should be according to the word of God. तो जब हम प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। Elaborate that next week. इसको भाई अगली बार और हम इस पर विस्तार से मनन करेंगे। So let's summarize. The first hindrance was cherishing sin. और पहले हमने इन बातों को हम फिर से दोहराएंगे। पहली जो बाधा थी, हमने देखा था कि पाप में आनंदित रहना, उसमें बने रहना। Number 2 was lack of faith. दूसरा था विश्वास की कमी। Number 3, bitterness. तीसरी बाधा थी कड़वाहट। Number 4, not knowing the will of God. और चौथा था परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना। Number 5, not praying according to the word of God. और पांचवी बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करना। Continue with the fifth point, elaborate the fifth point next week, and we'll go on to 2 or 3 more points. और 2-3 पॉइंट इसके और हैं, इसको हम अगली बार और विस्तार से मनन करेंगे 5वें पॉइंट को, और बाकी पॉइंट भी देखेंगे। Then we imitate the life of Christ, how we had confidence that whatever we prayed, the Father heard and will answer. जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, तो हमें ये हियाव हो जाएगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।